क्या आप लोग सभी ने निकाल लिया अपने कॉपी को? यस मैम। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एम आई विजिबल? मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? यस मैम। यस और नो? यस, वेरी गुड, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Now children, have you opened your copy? कॉपी निकाल लिया सभी ने? Yes, ma'am. मैम। ब्लैक बोर्ड विजिबल है? ब्लैक बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. What is the Yes, topic of the day? What is the topic of the day? Lesson 12. Lesson 12. Topic MCQ. Yes, we will continue our yesterday's topic. Is it clear? मैम लेसन 12 का MCQ। हाँ, यस, लेसन 12 का जो कल हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीक में आप लोगों का सोशल साइंस का ही टेस्ट, ये पता है ना? मैम संडे को। यस मैम। यस यस, हाँ, आज आप लोग को पोर्शन हम दे देंगे। टुडे आई विल प्रोवाइड यू द पोर्शन ऑफ द ये क्या कहते हैं, टेस्ट। नाउ चिल्ड्रन, यस, स्टार्ट। यही लिखिए अपने कॉपी में, हेडिंग लिखिए, डेट लिखिए और हेडिंग यही लिखिए, टॉपिक लेसन 12 MCQ। जब सभी का हो जाएगा तो बोलेंगे यस मैम आई हैव रिटेन, तो हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देन आई विल कंटिन्यू द क्वेश्चन एंड आंसर। यस मैम आई हैव। यस, वेरी गुड। नाउ यस, 1 to 5 तक ही चलेगा एक साथ, जैसे कल चला था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक, ठीक है? मैम आज भी क्वेश्चन भी लिखे और आंसर भी लिखे आज ही मैम। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप सिर्फ याद करेंगे, अगर लिख पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी अगर आप लोग को लिखवाने लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, ये नहीं कि आप फिर उसको, ठीक है? कल आप लगता है क्वेश्चन लिखने के सब चक्कर में ही आपको थोड़ा सा लेट हुआ। यस, क्वेश्चन का आपके लिए टेंशन नहीं है, डोंट बी टेंशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं करना है। ओके, नाउ start now children. Yes, my first question is, देखिए, whose invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India? My question is, whose, WHOS, whose invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India? My first question is, WHOS, whose invasion exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India? Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. My next question is, dash interest also attracted many Muslims to settle in India. Dash. My next question is, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, दिव्यांशी कुमार और विवेक वर्मा, माइक म्यूट करिए, जब जरूरत हो उसी समय बोलिए। विवेक वर्मा म्यूट योर माइक, और अनुष्का कुमारी आपके घर से आवाज आ रही है। जहां आपको जरूरत हो वहीं आप अपने माइक को सेल्फ अनम्यूट करिए और बोलना शुरू करिए। Dash interest also attracted many Muslims to settle in India. हो गया? Question number 3 now. But Mahmud Dash of valuable and artistic temples and idols was a great loss of Indian Dash. ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डैश दे रहे हैं आप लोगों को। आई एम गिविंग 2 डैश इन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज
Mahmud dash of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian dash. In this is question number 3. You are getting to fill in the blanks in question number 3. Ma'am, please repeat it. Yes. Mahmud dash artistic temples and idols to Indian dash. Ma'am, next. Ma'am, question number 4. Ma'am, voice is not coming. Yes, Ma'am, audio yes, is disconnect है ma'am. yes, there was some connection problem today. Net problem हो रहा है आज, लग रहा है मेरे तरफ से बार बार ऐसा हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से सुन लीजिए. हाँ, Mahmud dash of valuable Ma'am. items. Yes. Ma'am, could you please Yes, repeat बोलिए. question number 2? Question number 2 is dash interest also attracted many Muslims to settle in India. This is question number 2. And question number 3 is Mahmud dash of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian dash. Who is the author of Shahnama? Who is the author of Shahnama? Who is the author of Shahnama? Question number 4. Who is the author of Shahnama? Who is the author of Shahnama? Question number 5. Where is Ghor? Ghor. Ghor. Where is Ghor? Ma'am, please repeat. Where is Ghor? Ghor. Ghor. Ma'am, can you repeat question number 3? Question number 3 is Mahmud dash of valuable and artistic temples and idols was a great loss of Indian dash. This is question number 3. Question number 4 is who is the author of Shahnama? Question number 5. Where is Ghor? Ghor. Ghor. Now, अब हम लोग आंसर को ये करेंगे. Question number 1 was whose invasion exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India? Mahmud. Yes. Mahmud Gori. गजनी. ये पूरा लिखेंगे हम लोग. महमूद नहीं लिखेंगे. महमूद गजनी लिखेंगे. Is it? Question number 1 का आंसर लिखेंगे महमूद गजनी. सिर्फ महमूद नहीं लिखेंगे. महमूद तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गजनी लिखेंगे उसके साथ तो समझ में आ जाएगा कि गजनी कौन था. इसलिए फर्स्ट आंसर हम लोग लिखेंगे महमूद गजनी. नंबर 1 का महमूद गजनी. क्लियर दिख रहा है बोर्ड सबको? क्वेश्चन नंबर 2 है गजनी, नॉट गोरी.
महमूद गजनी। मैम नंबर 2 लेकिन अगर नंबर लेकिन क्या बोलिए, its line is हाँ mentioned बोलिए। that the credit of the founding of empire in India goes to Muhammad Ghori. हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि whose invasion exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India। आप तो क्वेश्चन ही बदल रहे हैं, इसे उसका आंसर मोहम्मद गजनी होगा। Okay, ma'am. Number 2 dash interest also attracted many Muslim to settle in India। Trade. Yes। Trade. Number 3 there are two destruction। उसके बाद सेकंड में Ma'am, second में destruction of heritage. valuable and Heritage. artistic symbols and idols were lost Indian heritage। Heritage. वो नंबर Firdausi. 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 Where is Gore? Afghanistan. Afghanistan. क्लियर आंसर सभी को? Ma'am. No, ma'am. Yes. Now, हाँ नाउ अगला हम लोग 1 2 3 4 करेंगे। स्टार्ट करिए, करते हैं। मैम रुक जाए मैम। इस क्या बोले? चैप्टर का नहीं भेजा। आ जाएगा मैम ना, वो अलग से लिखे। हाँ हाँ ये तो अलग से आपको ये करना है, वो क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपके पास आ जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, यू विल गेट। प्रॉब्लम फ्रॉम दिस व्हाट इज द प्रॉब्लम, बताइए। ओके मैम। हाँ बोलिए। मैम फर्स्ट आई हैव टू ओपन द बुक फॉर द प्रॉब्लम। बस क्यों? मैम इन पेज नंबर 91। हाँ 91 बताइए। मैम पेज नंबर 91 में लिखा है कि Yes. मैम जब वो इन जगहों को लूटता था मैम महमूद गजनी, हाँ तो मैम वो उसको कॉन्कर भी कर देता था। तो लूटने का मतलब क्या हुआ? जब वहां लूटने के लिए बिना कॉन्कर किए हुए लूट पाएंगे? ये बताइए, कोई लूटने देगा? आपके घर में कोई आके जब तक आपको डराएगा नहीं तब तक चोरी कर सकता है? यस और नो, ये बताइए। नो मैम। तो फिर आप लोग इस तरह का इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं करिए। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। यस मैम फिर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि हाँ बोलिए। a fierce battle took place with the Muslims and Rajputs. The power of हाँ Rajputs was crushed. King Jaichand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Banaras. हाँ मैम तो बोलिए, क्या पूछना? हाँ 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 बोलिए बोलिए बोलिए। मैम महमूद गजनी के अंदर में था ना कन्नौज, तो महमूद फिर मैम गजनी। उसको कोई डिफीट किया होगा तभी तो मैम अरे किंग अंदर में जैचंद था के तो पास है। तुम लोग एक बात तुम लोग बताओ, सुनो सुनो, जब तुम लोग का लॉजिक वहां तक चला जाता है तो यहाँ तक लॉजिक क्यों नहीं जाता कि लूट पाट करके वो अपने कंट्री में वापस चला गया तो उसके अंडर फिर तो कोई उसको ले लिया होगा, बताओ यस और नो। यस मैम। हम वो क्या करता था और चला जाता था, मतलब उसको कॉन्कर नहीं करता था। कौन कर आने के बाद री एस्टेब्लिशमेंट। मैम सोमनाथ टेम्पल को कितनी बार वन टाइम ओनली। क्लियर हुआ आपका डाउट? डाउट था मैम जब गजनी डाउट वाले बताइए। हाँ बताइए, डाउट वाले बोलिए जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन?
Yes, ma'am. I was asking the question. नेम बताइए। Ma'am, Anika. ओके हाँ, चलिए और किन का क्या पूछना है बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैम गजनवी मतलब क्या चीज होता है? गजनविस तो एक मतलब रूलर का एक मतलब कहिएगा कि अपने जो उसमें जो राजा बने उनका, जैसे मौर्य पढ़े हैं ना आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, बिंदुसार, उसी तरह से ये भी है। मैम डायनेस्टी। हाँ डायनेस्टी, दैट इज डायनेस्टी। और बताइए, और किन्हीं का कोई वहाँ पे रीस्टैब्लिशिंग होता होगा? तो नहीं होगा। तुम बताओ ये, अच्छा तुम लोग कैसे सोचते हो? मान लो कि घर में बाढ़ का पानी घुसता है ना, यस और नो? आता है कभी? देख सुने आप लोग, कुछ बर्बादी होती है तो क्या लोग वहां से घर छोड़ के चले जाते हैं कि बर्बादी के बाद फिर अपने आप को संभालते हैं? यस मैम। बोलिए। हाँ तो ये क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आता है तो वो सही है, क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तभी तो हम लोग उसके लिए लॉजिकल होकर चाहिए। तो ये चीज ठीक है कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आया तो उसका जवाब भी, जब कहता है प्लंडरिंग का मतलब होता है, अगर डिक्शनरी आप देखेंगे तो प्लंडर का मतलब उत्पात मचाना, लूटपाट करके। और फिर जब लूटपाट कर रहा है, दो को आपको दिया है कि एक एस्टेब्लिश किया रूल को, तो जिसमें मोहम्मद गोरी का है कि वो अपने, उसको अपना कोई बच्चा नहीं था, तो वो क्या किया कि अपने एक दास को जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसको जो है छोड़ दिया। और क्या कहते हैं, अरे हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गोरी के बदले यहाँ पर राजा बन गया। अब समझ में आ गया, जितना जगह जीता उतना जगह का राजा वहां का कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन गजनी में क्या था, वो लूट पाट करके वापस जाता। तो लूट पाट करके मान लीजिए कि आपका घर है, सपोज करिए, या इसको इजीली समझिए कि कोई अगर चोरी कर लेता है आपके घर में और फिर भाग भी जाता है, चला भी जाता है, तो क्या आप क्या करते हैं? आप अपने उस घर को छोड़ देते हैं कि री एस्टेब्लिश करते हैं अपने घर को? क्या करना चाहिए बताइए? हम अपने घर तो नहीं छोड़ेंगे, हम अपने घर को तो नहीं, जो लूट गया उसके लिए दुख मना सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि माय कंट्री। इसी तरह था, या मान लीजिए कि बाहर का कोई आकर के हमारे घर को पे आपके घर में कब्जा कर लेता है, जबरदस्ती आपको घर से निकाल देता है, तो आप निकल भी जाएंगे, उससे डर जाइएगा कुछ समय के लिए, लेकिन क्या फिर वो आप वापस आने की कोशिश करेंगे कि नहीं उस घर में? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेंगे ना कोशिश? कोशिश करते रहेंगे। जिस दिन उसको ये तो मेरा घर था, हम अपने घर में फिर से आ गए। तो इसी तरह राजपूत लोग हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन बट दे वे आर नॉट यूनाइटेड, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती। फाइट करते थे लेकिन सिंगल फाइटिंग करते थे। और ये लोग आते थे तो ये लोग बहुत मजबूती से, पूरी तैयारी से आते थे। और राजपूत लोग एक बार मान लीजिए जीत गए तो फिर निश्चिंत हो गए कि अब मतलब श्योर हो गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है, नाउ ही इज बैक। बट लेकिन वो वापस नहीं जाता था, वापस जाता भी था तो वो फिर तैयारी करके आता। It was the main reason of their success and failures of the Indian king. अब समझ में आया? और ये पूछ रहे हैं शशांक शेखर, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया इतना बड़ा, आप लोग क्लास 6 में आप पढ़ते थे कि नहीं शशांक शेखर? आपके ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर था मदरलैंड इंडिया वाला, उसमें आपका दिया था ना कि इंडिया इतना बड़ा है कि उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इतना सारे कंट्री के आसपास उसके है कि वो सब मिला करके सब कॉन्टिनेंट का एरिया कहलाता है। यस मैम, सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारा मिला करके कि इतना वो सारा आसपास का जो एरिया सब मिला करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कंट्री इंडिया ही है। यस मैम। और मैम ये सारा हम लोग का सब कॉन्टिनेंट है। नो, एशियन, हम लोग कॉन्टिनेंट एशिया में है, लेकिन इंडिया के आसपास का जो जितना 7 ये कंट्रीज है उसको करके और सारा कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है। एरिया पूरा बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपका सारा आंसर आपके बुक में रहता है, एवरी आंसर आपके बुक में रहता है, एवरी आंसर।
बस आपको थोड़ा ढूंढने की जरूरत होती है, नथिंग एल्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा ढूंढ लेना है कि वेयर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द रूलर ऑफ गोर at that time? Ma'am, what? Who was the ruler of Gaur at that time? Who was, this is question number 1 of this section. Who was the ruler of Gaur at that time? Who was the ruler of Gaur at that time? Who wanted to expand his empire in India? Who wanted to expand his empire in India at that time? Who wanted to expand his empire in India at that time? Who wanted to expand his empire in India at that time? Please repeat the first question. Who was the ruler of Gaur at that time? टाइम तो आप लोग के पास क्लियर ही है। Who was the ruler of Gaur at that time? Who wanted to expand his empire in India at that? Who wanted to expand his empire in India at that time? Whose main aim was to loot the great wealth of India? Whose main aim was to loot the great wealth of India? This is question number 3. Whose main aim was to loot the great wealth of India? Whose main aim was to loot the great wealth of India? किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। म्यूट, उदित राज, म्यूट योरसेल्फ। खुशी कुमारी, वेरी बैड हैबिट इट इज। Whose main aim was to loot the great wealth of India? मैम ये क्वेश्चन नंबर 3 था। Yes, question number 3. The credit of founding of Muslim Empire in India goes to whom? The credit of founding of Muslim Empire in India goes to whom? The credit of the founding. Yes, बोलिए। The credit of founding of Muslim Empire in India goes to whom? मैम रिपीट तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल। क्वेश्चन नंबर 2 अभी पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। The credit of the founding, this is question number 4. The credit of the founding of Muslim Empire in India goes to whom? This is question number 4.
क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। Who defeated whom? WHO who defeated WHOM whom in the first battle of Tarai? Ma'am, please repeat it. क्वेश्चन नंबर 5 है who defeated whom in the first battle of Tarai? Who defeated whom in the first battle of Tarai? Who defeated whom in the first battle of Tarai? मैम बैटल ऑफ के बाद मैम मेरे को Tarai, TARAI. लिख लिए मैम हो गया। हो गया। अब से करते हैं। Who was ruler of who in that time? क्वेश्चन नंबर 2 है who pays his attention towards India who wanted to expand his empire in India? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है whose main aim was to loot the great wealth of India? Whose main aim was to loot the great wealth of India? Question number 4 है the credit of the founding of Muslim Empire of India in India goes to whom? किसको जाता है जो मुस्लिम एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश किया था? Goes to whom? Question number 5 है who defeated whom in the first मैम आप कुछ बोल नहीं रही। मैम आपकी आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही है। हो गया। Ma'am, your voice is not coming. मैम मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम डिस्कनेक्ट है ऑडियो से। डिस्कनेक्ट हो। फर्स्ट आंसर महमूद। हाँ फर्स्ट आंसर मोहम्मद गोरी। फर्स्ट आंसर है हाँ मोहम्मद गोरी MUHAMMAD मोहम्मद गोरी फर्स्ट आंसर। महमूद गजनी। नहीं मोहम्मद गोरी। थर्ड का मोहम्मद गोरी है। फर्स्ट का नहीं फर्स्ट का आंसर है मोहम्मद गोरी। सेकेंड का भी आंसर मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन थर्ड सेकेंड who wanted to expand his empire in India? First मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी। गौरी नहीं गौरी। गोर के नाम पर इसका गोरी। जो आप लोग गजनवीस पूछे तो गजनी के नाम पर गजनवीस वो कर दिया था अपना वही था। नंबर who pay his attention towards India to expand his empire? तो ये भी मोहम्मद गंजी। मोहम्मद गोरी। नहीं हाँ गोरी गजनी नहीं मोहम्मद गोरी। इसका भी आंसर गोरी ही होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा आता है आंसर एक रहता है उसका। यही ध्यान देने यही आप लोग को अटेंशन करने का चीज है। क्वेश्चन नंबर whose main aim was invading India to loot the great wealth? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी। हाँ महमूद होगा। मैम महमूद गजनी। महमूद गजनी। मैम महमूद गजनी। महमूद गजनी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 था who the credit of the founding of Muslim Empire in India goes to मोहम्मद गोरी। मोहम्मद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। चौहान। बहुत बढ़िया। मैम In the first battle of Tarai. गजनी टू पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की
पहला क्वेश्चन था हु डिफीटेड हूम, तो इसमें पहले पृथ्वीराज चौहान होगा। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड पहला आंसर जो होगा पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गजनी। मैम पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। इसमें डिफीटेड लिखने के हु हो गया और हुम का यहाँ पर सीधे लिखेगा मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान। मैम गजनी ना होगा। नहीं, गोरी को हराया था, गजनी को नहीं हराया था, गोरी को हराया था। मैम मोहम्मद गोरी। मैम मोहम्मद गोरी को हराया था, गजनी को नहीं हराया था। ठीक है, गजनी को तो गोरी हाँ। अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? जितना भी हम लोग पढ़े उसमें से एनी क्वेरी किसी का है तो हमसे क्वेरी कर सकता है। किसी का भी कोई क्वेरी है तो वो कर सकता है हमसे। नो मैम नो। तो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। मैम पृथ्वीराज चौहान इंडिया के थे। हाँ, इंडिया के थे। पिछले चैप्टर में नहीं पढ़े हो? पृथ्वीराज चौहान इंडिया के थे। ठीक है, मैम चलिए अब रेडी फॉर द मैम के राजा चैप्टर का नेम तुर्किश इन्वेजन है, तो मैम इन सब का मैम होमवर्क क्या है? कंट्री मैम अफगानिस्तान की दिया, मैम तुर्की ना होना चाहिए। नहीं 4 वो उधर के लोगों को टर्किश उस समय कहा जाता था। ये सब चीज तुम लोग जो है ना आज अलग अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछो, टर्की ना होना चाहिए, अफगानिस्तान क्यों हो गया, अब ये जाके पूछो जो लिखा है उसको। कहते हैं सुल्तान मत चुप। क्वेश्चन वो पूछो जिस क्वेश्चन का कोई वैल्यू हो। तो चैप्टर का नाम टर्किश, उधर के लोगों को उधर ही के वो लोग टर्किश ही कहलाते थे। मैम जैसे इधर से सारे लोग मिलके वो लोग नहीं इंडिया में रहने वाले हम लोग हिंदुस्तानी कहलाते हैं ना, उधर के लोग तुर्क कहलाते थे, इसीलिए वो तुर्क से टर्किश हुआ। तुर्क से टर्किश हुआ, दैट इज द। तो आप लोग सीधा एकदम पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। मैम जो क्वेश्चन पूछिए जो थोड़ा रिलेटेड हो। वो सब में स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम टाइम हो गया। टाइम हो गया, लेकिन अभी तो चल रहा है, आपका खत्म हो रहा है क्या? अनिमा शर्मा में कोई कौन आ रहा है? मम्मी है, दादी है, कौन है? हुई अनिमा शर्मा, हुई विथ यू।